Hello everyone and welcome back to another lecture of Power System 2 with AKTU subject code as KEE601. We are dealing with the module number 2 of this subject, which is load flow study. We have already discussed some parameters. Let us move ahead. My name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. So let us begin with the today's lecture. So, let us quickly recap what we have studied till now in this module. We have studied what load flow is, what is the general equation of load flow, and using the buses, which is slack bus, which is also called as reference bus, PV bus and PQ bus. Using these three types of buses and determining the value of impedance bus in the system, we can use these situations to determine some set of equations. What we found out was those equations are nonlinear equations which cannot be normally calculated, and thus it uses the method of iterations to calculate the value, where we used two methods previously. One was Gauss-Seidel, other was Newton-Raphson. ठीक है, Gauss-Seidel का डिसएडवांटेज था कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत हैं और कन्वर्जेंस बहुत लेट में आता है. इम्प्रूव किया न्यूटन-रैप्सन मेथड ने, कैसे? बाय यूजिंग Jacobian method to compute, we are using Jacobian method to compute iterations. So, what is this method? What is the problem? Then why we don't stick up with it? Because this is very time consuming. Why? We have to calculate the 4 Jacobian matrices. If we remember correctly, let me remind you, del P upon del Q. These are the value which we had to determine, right? It was using 4 Jacobian matrix, and what was the impedance? Delta del and delta mod V, या V upon magnitude of V, whatever we want to represent it as. Now we had this matrix, the blank space which I am indicating right now is the Jacobian matrix. It was divided into 4 Jacobian matrix. First is normally denoted as H, N, M, L. ठीक है, ये 4 Jacobian matrices थे. अब बात ये है कि जब हमारे पास गॉस-सीडल जैसा ही काम है तो हम इसको फास्ट डिकपल्ड मेथड बोल के क्या करना चाह रहे हैं? सी, इट इज एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन-रैप्सन ओनली, और न्यूटन-रैप्सन भी पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में ही. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर इन न्यूटन-रैप्सन एंड व्हाट इज द पोलर फॉर्मेट एंड सो ऑन सो ऑन. सो फास्ट डिकपल्ड मेथड में हम देखो, नाम क्या है इसका? डीकपल्ड मेथड, एंड देन इट इज फास्ट. So first we will try to do some decoupling, right? When we have understood this concept of decoupling, then we will use some of the assumptions to make it fast, because the problem with the Newton-Raphson method was it is very time consuming. It also consumes a lot of space when we have to store, when we are writing an algorithm in the computational mode, right? So let's move ahead. सबसे पहले हम बात करते हैं decoupling की. यहाँ जो decoupled word use किया गया है उसको किस सेंस में किया गया है, इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखते हैं जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है. अगर हम लिखें डेल पी, इट कैन बी रिटन एज एच इंटू डेल्टा डेल, दिस फॉर्मेट, एंड डेल पी इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा वी. सिमिलरली डेल क्यू के एक्सप्रेशन को लिखें तो लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा डेल, एंड डेल क्यू इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा मॉड वी, या V upon magnitude of V, whatever we want to write it as. ठीक है, अब decoupling में क्या है? तो यहाँ del indicate क्या करता है? Small change. So what we are considering, if there is a small change in magnitude of the bus voltage, it will not affect the real power flow. Real power मतलब del P. ठीक है, अगर small change in voltage है तो real power पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली अगर बहुत स्मॉल चेंज है फेज एंगल में तो हार्डली कोई इफेक्ट पड़ता है रिएक्टिव पावर फ्लो को. मतलब रिएक्टिव पावर, अगर डेल स्मॉल चेंज इन लोड एंगल है तो हार्डली कोई फर्क पड़ता है डेल्टा क्यू को. ठीक है, देयर इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज विच वी ऑब्जर्व. तो यहाँ ये क्या होगा, ये दोनों टर्म्स डिकपल कर दिए गए. कौन कौन से टर्म डिकपल हुए? Change in reactive power and voltage, active power and voltage, change in voltage,
change in reactive power and change in load angle. These terms are decoupled from the Jacobian matrix of Newton-Raphson. ठीक है. So this is why it is called as decoupling method. अब डीकपलिंग हो जाने, डीकपल का मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हार्डली कोई इफेक्ट है, तभी तो डीकपल बोल रहे हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वी आर नॉट हैविंग इंटरैक्शन बिटवीन load angle and voltages in case of active and reactive powers, right. So what will happen, this will lead us to a more faster calculation, more reliable calculation. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आप हम इस एक्सप्रेशन को देखें, जो पोलर फॉर्मेट ऑफ न्यूटन-रैप्सन है, जहाँ पर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो एक्टिव और रिएक्टिव पावर, ये जैकोबियन मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट है, चेंज इन लोड एंगल एंड चेंज इन वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है जो इनपुट में हमारे पास अवेलेबल है. अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि रियल पावर जो है वो लेस सेंसिटिव है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से, तो रियल पावर का जो एक्सप्रेशन था वो जे इधर था. दिस इज रिलेटिंग ना रियल पावर विथ चेंज इन वोल्टेज. अब क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है, डीकपल हो गया तो व्हाट कैन वी राइट इट एज 0. सिमिलरली इफ वी नो दैट रिएक्टिव पावर जो डेल्टा क्यू है वो फेज एंगल के चेंज होने से लेस सेंसिटिव है, द वैल्यू डजंट चेंज टू मच एंड हेंस कैन बी डीकपल्ड टुगेदर. तो डीकपलिंग का मतलब हो गया डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन लोड एंगल से कपल्ड नहीं होना चाहिए. तो जो कपलिंग जैकोबियन मैट्रिक्स है यहाँ वो भी 0 हो गई. So see what we are doing here. Suddenly all of a sudden 4 Jacobian matrix में 2 Jacobian matrix तो 0 हो गई, and that is why we are having ना less number of time in calculation. ठीक है. So this becomes 0. So what is the remaining equation which we have? We have only 2 equations which remains. Delta P is equal to H time delta Q. One is this, and दूसरा है delta Q is equal to L times change in voltage. Now what we have to do is we have to derive this value. How are we going to do? Let us quickly remember what are the equations of, पहले तो P, किसी ith बस में P का वैल्यू क्या, क्योंकि हम ये पहले इक्वेशन को देख रहे हैं इसलिए. सिमिलैरिटी से हम Q भी सॉल्व कर लेंगे. तो हम लोगों ने P को एक्सप्रेशन को जब लिखा था तो what we had written कि वो जो समेशन ऑफ Vi स्टार इंटू Vj इंटू Yij था, अब उस Yij को हम लोग पोलर फॉर्मेट में लिखें तो G माइनस JB के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एंगल की बात करें तो थीटा ऑफ वैल्यू लिख सकते हैं. अगर इसको सम अप किया जाए तो Pi को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज I इंटू मान लेते हैं किसी jth बस के लिए किया जा रहा है तो Vj इंटू Yij, ये रहा मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब क्योंकि हम रियल पार्ट की केवल बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और एंगल लिखा हुआ हो, अगर वी ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट एज इन द करस्पॉन्डिंग format from polar to rectangular? It can be written as na m cos theta plus j m sin theta. So that is what we are trying to do here. ठीक है. तो रियल पार्ट ऑफ द पावर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ टोटल एंगल. व्हाट इज कॉस ऑफ टोटल एंगल? तो कॉस ऑफ थीटा आई जे माइनस, क्यों माइनस इसलिए है कि डेल आई के साथ माइनस इसलिए क्योंकि कॉन्जुगेट था, प्लस डेल जे, ये वैल्यू है. ठीक है. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो i इज इक्वल टू जे वाली वैल्यू है वो जरा सेपरेट कर लेते हैं, बचा हुआ सब समेशन के अंदर रहने देते हैं. ये समेशन के साथ है, nth टर्म के लिए ये पूरी चीज है. ठीक है. तो लेट अस सेपरेट आउट. तो सेपरेट करेंगे तो p यहाँ लिख देती हूँ मैं, पी आई हो जाएगा वी आई इंटू वी आई, फिर से क्योंकि j इज इक्वल टू आई हो गया, वाई आई आई क्योंकि j इज इक्वल टू आई हो गया, कॉस थीटा आई आई, ये वैल्यू j इक्वल टू आई होने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस समेशन में बच क्या गया, वी आई वी जे वाई आई जे कॉस थीटा आई जे माइनस डेल आई प्लस डेल जे. ठीक है. ये हमारे पास ith वैल्यू पी आई का एक्सप्रेशन हो गया. अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन है डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ऑफ डेल्टा डेल.
तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। करना क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। सो लेट्स सी हियर फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ H मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब J इज नॉट इक्वल टू I, और यहाँ पर J की जगह इफ यू ट्राई टू राइट K, वट एवर कन्वेंशन वी वॉन्ट टू यूज वी कैन यूज। ठीक है, सो वी आर राइटिंग इट एज, सी वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू K। ठीक है, तो डेल्टा डेल के करस्पॉन्डिंगली डिफरेंशिएट करेंगे। वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड में तो कुछ टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर है। इस फर्स्ट टर्म को अगर देखिए, केवल ये टर्म i इक्वल टू जे के फॉर्मेट के लिए यूज, i इज इक्वल टू किसी jth बस के लिए या किसी kth बस के लिए निकाल रहे हैं। लेट अस सपोज हम kth एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो किसी kth एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर तो टर्म ही नहीं आ रहा डेल का, डिफरेंशिएशन करते समय वो 0 हो गया। एग्जैक्टली किसी kth बस के लिए निकाल रहे हैं तो वी आई, जे की जगह हम kth बस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वी के किसी बीच के बस के लिए यूज कर रहे हैं। j इज इक्वल टू 1 से n है अगर, तो किसी बीच j नॉट इक्वल टू i, तो किसी बीच के बस के लिए यूज कर रहे हैं जो kth बस है। ठीक है, तो इंटू वाई आई के हियर कॉस ऑफ थीटा आई के। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस ऑफ a प्लस बी जैसा फॉर्म है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक साथ ले लें अगर थीटा और डेल वाले टर्म को सेपरेटली, तो साइन, सॉरी वी आर राइटिंग हियर कॉस, इट इज साइन, आई एम रियली सॉरी, इट इज साइन। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन होने के बाद साइन हो गया ना, इसलिए साइन लिखा है मैंने। हियर इट इज कॉस ओनली, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, या यहाँ पर मान लेते हैं हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डेल के साथ, तो कॉस का लिए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जब साइन ऑफ टर्म आ जाएगा, उसके बाद कह रहे हैं हम इसको साइन ए, इस टर्म को ले लें और इसको बी ले लें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो वी आई और वी के बाहर रहने देते हैं, ये जो वाई आई के है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आई के इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ डेल का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई आई के इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन में जो डेल का डिफरेंस है। अब इस टर्म को देखिए, y इंटू साइन, एडमिटेंस इंटू साइन है वो रियल पार्ट के फॉर्म में आएगा, तो b ऑफ टर्म आ गया, और y इंटू कॉस वो इमेजिनरी वाले के साथ आएगा, इसलिए g आ गया है। ठीक है, कॉस डेल आई और डेल साइन में और कॉस में वहाँ पर सिमिलरली एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, किसी ith बस के लिए, किसी kth बस के लिए जो ऑफ डायगोनल हैं, मतलब k इज नॉट इक्वल टू i, उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब सिमिलरली अगर हम L मैट्रिक्स के लिए करना चाहें, तो L मैट्रिक्स के लिए भी चेंज अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, L को क्या लिख रहे हैं हम लोग, L मैट्रिक्स चेंज इन वोल्टेजेस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं Q को, तो पहले Q का एक्सप्रेशन लिख लें, तो वही सेम सिनारियो यहाँ भी, वी आई इंटू वी के इंटू वी आई के इंटू साइन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे अगर वोल्टेजेस के टर्म में विच इज नॉट इक्वल टू आई, किसी kth बस के लिए कर रहे हैं जो i के इक्वल नहीं है, तो ये वोल्टेजेस वी आई रहेगा, वी के रहेगा, y ऑफ आई के इंटू साइन थीटा आई के प्लस जो लोड एंगल का डिफरेंस है वो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही हो गया, साइन एक एंगल है, ये दूसरा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर से। फिर ये जो y साइन थीटा है उसको g लिखेंगे, और y कॉस थीटा के फॉर्मेट में यहाँ पर b और g का एक्सप्रेशन आ गया। सेम मेथोडोलॉजी से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज निकाल ली। सी दिस इज वेरी सिमिलर टू ईच अदर, इफ यू लुक इट इज वेरी सिमिलर। व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू, HLN के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बाद डायगोनल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा था, समेशन k इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू वी आई वी के वाई आई के साइन थीटा आई के माइनस डेल के प्लस डेल आई। ठीक है, बाहर माइनस है डेल आई से डिफरेंशिएट करने की वजह से। अब यही ही टर्म हमारा सॉल्व होकर आया था अभी थोड़ी देर पहले, क्यू आई प्लस वी जे प्लस इंटू वी आई इंटू वाई आई इंटू साइन थीटा आई।
अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं केवल आई की जे की जगह आई, तो माइनस क्यू आई एज इट इज है, वी आई इंटू वी जे की जगह फिर आई हो गया तो वी आई स्क्वायर हो गया ये, और वाई ऑफ आई इंटू साइन थीटा आई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, बी ऑफ आई, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, अगर हमारे पास ऑफ डायगोनल का एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सिमिलरली डायगोनल एलिमेंट ऑफ एल मैट्रिक्स का डिटरमाइन किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, डेल क्यू अपॉन डेल वी इंटू वी वन, तो यहाँ पर अगर एक v1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2v1 स्क्वायर वाई आई इंटू साइन थीटा वन, ये जो हमने i इक्वल टू जे इक्वल टू आई वाला टर्म अलग किया था, बाकी मैट्रिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। सिमिलरली जो अभी हम लोगों ने ऑफ डायगोनल के लिए किया था, अब इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v1, तो यहाँ पर vi है तो 2 इंटू डिफरेंशिएशन, जहाँ vi का टर्म है वहाँ डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे, वी कैन राइट 2vi स्क्वायर इंटू वाई आई इंटू साइन थीटा आई प्लस q1, सिमिलर टू हियर, दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड ना, वहाँ पे माइनस q1 आया था, यहाँ पे प्लस q1 आया था, यही डिफरेंस आया था h और l में, ठीक है। सो माइनस वी आई का स्क्वायर इंटू वाई आई इंटू साइन थीटा आई, वी हैव सॉल्व दिस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन इन v1, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डायगोनल होने की वजह से इस k को i रख दिया है, दैट इज इट, ठीक है। दैट इज वाई ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ थीटा आई बचा है, तो साइन थीटा आई, अब y के साथ साइन रखा रहा है वाई आई इंटू साइन थीटा आई इंटू वी आई, और y के साथ साइन थीटा इज बी आई अगेन, और वोल्टेजेस सेम ही हो गए हैं, k इज इक्वल टू आई, तो वी आई वी के जो वैल्यू थी k की जगह भी i हो गई, तो वी आई इंटू वी आई होगा वी आई स्क्वायर, ये भी सिमिलर वैल्यू निकल कर आई। तो डायगोनल एलिमेंट्स में देखिए बड़ी सिमिलैरिटी आ रही है, ये टर्म बस q वाला जो टर्म है वो माइनस है, ये q वाला जो टर्म है यहाँ प्लस है। अब हो तो गया सिंप्लीफाई, हमें थोड़ा और फास्ट करना है, और फास्ट तभी हम इसे प्रॉपरली फास्ट डिकपल्ड मेथड बोलेंगे। तो हम कुछ एक अजम्पशंस लेते हैं यहाँ पर, जिसको यूज़ करने से ये जो थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी आ रही है ना डायगोनल एलिमेंट्स में, एक जगह प्लस आ रहा है एक जगह माइनस, वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए, जिससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। अब देखिए और कम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, और कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज होंगे इसको स्टोर करने के लिए व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर द कंप्यूटेशनल मेथड, और एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने से दो वैल्यू मिल जाएगी हमको, सिमिलर ही तो है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज यूज सम अदर मेथड, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज फास्ट डिकपल्ड मेथड, ठीक है। क्या असम्पशन ले रहे हैं हम, यहाँ पर मेंशन है, कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन नंबर 1, the difference in the load angle is very small, so the cos of the difference in the angle tends to 1. Similarly, if this term is very small, multiplying into g will make it more smaller. It is so small that it can be neglected when it is compared to bik, ठीक है। तभी qi जो ये टर्म क्या है, q वाला ही तो एक्सप्रेशन दे रहा है, साइन का टर्म है इसलिए, तो qi इज ऑलवेज वेरी वेरी लेस देन bi इंटू वी आई स्क्वायर। ये अजम्पशंस यूटिलाइज करने से हमारा एक्सप्रेशन और रिड्यूस हो गया, तो और रिड्यूस हो गया तो क्या, फाइनली हमें जैकोबियन मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में मिल रहा है। हमें हमारे पास पता था p के लिए हमें h और l ही तो निकालना था, केवल दो ही मैट्रिक्स है, हमारे पास डेल्टा p इज इक्वल टू h इंटू डेल्टा डेल था, ठीक है। तो इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एज वी आई इंटू, किसी kth बस के लिए लिख रहे हैं तो वी के इंटू बी आई के डेल्टा डेल के। सिमिलरली डेल क्यू के लिए लिखें तो क्या लिख रहे थे हम लोग, L इंटू चेंज इन एंगल, इफ यू वांट टू राइट वी कैन राइट एज डेल्टा V अपॉन मॉड ऑफ V, विच वी कैन राइट इट एज वी आई इंटू वी के इंटू बी आई के डेल्टा वी के अपॉन वी के। सो ये क्या हो गया, और फास्ट हो गया, क्यों, क्योंकि डीकपल और करा है हमने इसमें। तो फाइनली इस मेथड को हम फास्ट डीकपल्ड मेथड बोल रहे हैं, जहाँ पे हम ये जो बी कॉन्जुगेट वाला जो टर्म है उसको ओमिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे ओमिट कर रहे होंगे, फेज शिफ्टर इफेक्ट यूज़ करके। तो हम लोग फेज शिफ्टर इफेक्ट यूज़ कर कर बी डबल डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बीन मल्टीप्लाइड एंड एट द एंड व्हाट वी कैन से कि हमारे पास जो एच पी पी है
वो हमारा जो H और L मैट्रिक्स है वो सेम आया था, LPP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ वॉट, विच इज़ नथिंग बट इट इज़ VP का स्क्वायर इंटू B ऑफ PP, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ थोड़ा सा। अब हमारे पास जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है HPQ या LPQ, उनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, HPQ और LPQ को हम लोग सिम्पली लिख सकते हैं कि वोल्टेज लिख रहे थे VP इंटू VQ, दोनों वोल्टेजेस का सम, इंटू YPQ साइन ऑफ डेल थीटा PQ बिकॉज बोथ दी बसेस का डिफरेंस था, माइनस डेल P माइनस डेल Q प्लस डेल Q, ठीक है। तो ये हमें डायगोनल और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और बहुत इजीली हम ये क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर बी डैश के एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में हम यहाँ इसको इंडिकेट करें तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन एज दिस, del P upon VI is can be written as B dash into delta del, and similarly del Q upon VI can be written as B dash into del V। तो ये क्या हुआ, हमने इक्वेशंस बेसिकली डिवाइड कर दी हैं, इक्वेशन को दोनों को VI से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद VK को हम अगर मान लेते हैं kth बस जो है वो वर्ग पर यूनिट पर है इनिशियल गेस के तौर पर, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे सीरीज रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, और फास्ट हो गया। तो कुल मिला के वॉट आर वी ट्राइंग टू से हियर, वी आर ट्राइंग टू से कि जब भी हम कभी भी न्यूटन रैप्सन को यूटिलाइज कर रहे थे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ होने की वजह से लार्जर सिस्टम्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वाई, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट 4 टाइम्स जेकोबियन मैट्रिक्स, और हर जेकोबियन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे थे n1 प्लस 2 n2, हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास, तो उतने वेरिएबल को स्टोर करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए, तो कंप्यूटेशनल स्पेस है तो कंप्यूटेशनल फेचिंग भी होगी, तो इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट वी हियर डिड कि पहले तो डिकपल ही कर दिया किन दो टर्म्स को, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज और स्मॉल चेंज इन लोड एंगल में कौन सा फैक्टर है जो किसको डिफरेंट, मतलब डेल पी को कौन सा इफेक्ट कर रहा है और डेल क्यू को कौन सा इफेक्ट कर रहा है, उससे दो मैट्रिक्स जीरो हो गई। बची दो मैट्रिक्स का जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने कुछ अजम्पशंस ले लिए जिसकी वजह से वैल्यूज क्या हो गई, सिमिलर आ गई। इसका फायदा ये हुआ कि एक वैल्यू को कैलकुलेट करके हमारा दूसरा वैल्यू भी मिल जा रहा है। So what we have to do, we have to use less number of variables when we are doing it this in the form of computational algorithm. So let's quickly understand the process. तो हमारे पास B डैश B डबल डैश दो एलिमेंट्स हैं, कौन से, किसके एलिमेंट हैं ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस, ठीक है। वो ये टर्म क्या है, ये रियल है, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो ये स्पार्स मैट्रिक्स है, दैट इज व्हाई ओनली वी आर यूजिंग वाई बस ना, बिकॉज इट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। तो जो H और L के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत सिमिलर बनेगा, चाहे B डैश यूज करें चाहे B डबल डैश यूज करें। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेटवर्क की एडमिटेंस है दे आर कांस्टेंट एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इन दी सक्सेसिव इटरेशंस आल्सो, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक ही बार इवैल्यूएट करें और उनको वैल्यूज को वेरिएबल में सेव करके सेव कर दें और B को सेपरेटली सेव कर दें, B डैश को सेपरेटली सेव कर दें, तो डायरेक्टली उस वैल्यू कैलकुलेट करके एक बार इनिशियली ये काम कर सकते हैं। तो एक बार वेरिएबल सेव हो गया तो उसको हर इटरेशन में केवल कॉल ही तो करना है, विच इज़ वेरी इजी रादर दैन कैलकुलेटिंग इज लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक वेरिएबल हमने सेव करके स्ट्रक्चर रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो जेकोबियन का जो नेचर है B डैश और B डबल डैश का, उसमें स्पार्सिटी है, ठीक है। इससे फायदा क्या, मैं स्पार्सिटी का मतलब समझें, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर जीरो इज कमिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मेकिंग द कंप्यूटेशन वेरी फास्ट, so it takes less number of time to update the value of delta del in the previous from the previous values and delta v from the previous values of voltage, ठीक है। तो इस इटरेशन में हमारा इटरेशन फास्ट हो जा रहा है, तो हमारा टॉलरेंस लिमिट तक पहुंचने के लिए हमें लेसर नंबर ऑफ टाइम्स मिल रहा है और लेसर नंबर ऑफ इटरेशंस में हम टॉलरेंस, लेसर नंबर ऑफ इटरेशन में तो वैसे भी पहुंच रहे थे क्योंकि न्यूटन रैप्सन इज डूइंग व्हाट, इट इज
used only for converging it faster. So we are already converging it faster. The main problem from the Newton-Raphson to fast decoupled method was to use less number of variables, less computational complexity. So what we have done is, we have done the decoupling, we have saved several number of values which we are repeating again and again in every iteration of admittance bus. So we can very quickly say that this method is the fastest method, ठीक है, which we can see here in flow chart. Flow chart में क्या है, values को read कर रहा है, रेफरेंस वैल्यूज को अज्यूम कर रहा है, बी डैश और बी डबल डैश मैट्रिक्स जैसे बोला गया शुरू में ही कैलकुलेट कर लिया, इटरेशन काउंट को सेट किया, डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट किया, चेक कर रहे हैं कि कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन वेल एंड गुड, डेल्टा क्यू निकाले और कन्वर्ज कराएं उसको. अगर नहीं हो रहा है तो बार बार ये कन्वर्जेंस कैलकुलेट करते जाएं जब तक कि कन्वर्ज ना हो जाए तो फिर डेल्टा क्यू के लिए आ जाएंगे. ठीक है, स्लैक बस अगर हो रही होती है तो डायरेक्टली हम उसको कैलकुलेट करके बस की काउंट को बढ़ाकर आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो एंड सो ऑन, ये हम एडवांस काउंटेशन करते चलेंगे तब तक जब तक हम ये वैल्यूज डेल्टा पी डेल्टा वी की जो हमें कन्वर्जेंस लाना है उस तक अटेन नहीं हो जाता. So sum up with the load flow analysis, what we have to discuss is the comparison. Finally we can say, अगर हम तीनों मेथड्स को एक साथ लें, फास्ट डिकपल्ड लोड फ्लो, न्यूटन रैप्सन और गॉस सीडल में, तो सबसे लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए होती है गॉस सीडल को, उससे कम चाहिए न्यूटन रैप्सन को, न्यूटन रैप्सन से तो थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमको फास्ट डिकपल्ड मेथड में. सिमिलरली अगर कंप्यूटेशनल टाइम की बात करें, हाँ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशंस तो ले रहा है, कंप्यूटेशनल टाइम एक इटरेशन को सॉल्व करने का कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसी ज़्यादा को यहाँ पर फिर से कम कर दिया गया है. ठीक है, लीनियर कन्वर्जेंस है, क्वाड्रेटिक है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हाउ वी आर यूजिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर एनी विच वेज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड सॉल्विंग इट इन दी पोलर फॉर्मेट. ठीक है, तो नेक्स्ट कंपैरिजन वी कैन से इज नंबर ऑफ इटरेशंस जो हमें कन्वर्जेंस के लिए चाहिए विच इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द सिस्टम. मतलब जैसे ही सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ये हमारे लिए फेलियर मेथड होता चला जाएगा. यहाँ क्या है न्यूटन रैप्सन में कि इटरेशन पर इंडिपेंडेंस है साइज ऑफ द सिस्टम का, कितना भी बड़ा सिस्टम हो इंडिपेंडेंट है हमारे लिए कि कितना बार में कन्वर्ज करेगा. और हम फास्ट डिकपल्ड के लिए क्या कह सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इटरेशन है ये भी साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना लार्जर नंबर ऑफ द सिस्टम है. फाइनली मेमोरी स्पेस की बात करें तो न्यूटन गॉस सीडल में क्योंकि सिर्फ वोल्टेजेस की वैल्यू को ही सेव करना था, मेमोरी स्पेस कम लेता है. न्यूटन रैप्सन में क्योंकि चारों जैकोबियन मैट्रिसेस यूज हो रही हैं, चारों की वैल्यूज आ रही थी, तो इट टेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी स्पेस. इसी मेमोरी स्पेस को, इसी के डिसएडवांटेज को तो यूज किया है फास्ट डिकपल्ड मेथड ने, विच रिड्यूसेस द वैल्यू. एंड फाइनली व्हाट वी कैन सी हियर द टाइम कर्व between the number of buses. If there are larger number of bus, we can see that Gauss-Seidel method का convergence time बहुत high है, और comparatively Newton-Raphson and implementation of Newton-Raphson in load flow as fast decoupled method, इसमें values कम हो रही हैं. That's it for this lecture. I hope we have understood the value of the importance of all the three methods. Definitely the most popular method is Gauss-Seidel method. But since it is having a large number of iterations, we have to use Newton-Raphson. Since Newton-Raphson was complicated enough to save and it took larger number of time, we shifted on to fast decoupled method. In the next lecture, we will be discussing some of the examples where we can clarify all the doubts which we have in the mind of how do we perform this when we have a given set of data. Thank you very much.